हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं जीन्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, जीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। द जीन ऑफ individually in the genotypes and the expression of the gene result in the phenotypes. This you have already learned. There are preview lesson. There are different structural protein. Example: hemoglobin in the blood, enzymes, pepsins, almost all which are the protein. There are carrier protein in the cell membranes and about which you have learned in lesson first on the cell. And so there are various protein and the informations for the formation of their protein is present in the genes, which you now are the sequence of base in the DNA molecules. For a study of protein synthesis, you have to first understand the following. The first is a central dogma and genetical code. That is the most important here. The first is a central dogma. There is a genes are in the nucleus and protein are synthesis in the cytoplasm of the cell. The transfer of information from a genes to be a site of protein synthesis is a continuity. There is central dogma. The central dogma is operate in the flowing sequence. Is information flow from the DNA particle genes. That is the most important. The information flow, there is a particle genes to be a particle protein through the RNA. Here show in this flow chart the DNA transcription of RNA and there is the RNA translation for protein. Therefore the protein synthesis of first the information coded in a DNA in the copied as the complementary messenger. The RNA molecules, this is a term to the transcription messenger. RNA is carrying to the information moving out of the nucleus into the cytoplasm and attached to there is a ribosome to translate the information in the form of a protein. This term is called to the translation in the shown here. And in the retrovirus, their genetical material is RNA. Therefore, during the protein synthesis, it is the first. The transcript into the DNA molecules in the presence of enzyme, reverse transcriptase, and then to the path of central dogma is flowing shown below. There is RNA is a reverse transcription here. There is a goes with to DNA, and the DNA goes with to messenger mRNA, and there is a 8 list go with to protein. There is genetical of retrovirus on here. And second is the genetical code. Their genetical code is the most important here. The information from a synthesis of protein is present in the DNA in a sequence of nucleotide. This coded information was discovered by Nedgoworks, Mathis, and Okoye. There is a genetical code referred to the information in a DNA responsible for their amino acid sequence of a particle protein to the synthesis. The information is coded as their sequence of nitrogen base in the DNA molecules. The particle genes of fragment of DNA which is a carrier their code for a synthesis of complete is a polypeptide proteins, and their term is a satron. Satron there is a term is called to the complete polypeptides means a protein. The genetical code of the following character, they here show the genetical code is a character here. It's the most important topic here. There is the character of genetical code. The first is genetical code is a triplet code. There is a first is a genetical code is a triplet code. This means to the that sequence of 3 base is called codon, has the information of particular amino acid. The sequence of codon is determined to the sequence of amino acid in a protein. Genetical code is unambiguous, that is the particle codon can be coded from any one amino acid. And third is genetical code is a convolusis and a non-overlapping. This means to that is a rare continuity from the beginning to the end. Here the fourth is a genetical code is a degenerated. There is a genetical code is degenerated. There are 20 amino acids only that form the various protein of living beings. But if 3 out of 4 nucleotides each are continually one of the 4 base from a codon, there can be a 4 is a power 3 Qs is mean to the 64 codon. There is a 4 is a power Qs is there a 64 codon.
N has more than one codon code for the particular amino acid. That is, the code is degenerated in their fact, as you can see from a table. First two ways of the codons from their same amino acid are common, and their third change of the voluble. This is called voluble is a hypothesis. There is the most important here. The next is the genetical code is read on the transcript as a mRNA, means messenger. There is a protein during the protein synthesis. There is the most important here, transcript of messenger RNA during the protein synthesis, and AUG is codon. AUG codon from to the methionines, and initially codon is the first one to the transcript from the citron. But 7 points the character is the most important. UAA and UAG and UGA are the stop codon and anticodon of one of these three codon is present at the end of every citron a terminate protein synthesis. There is the most important here, the three as the codon present in the end of every citron terminate protein synthesis. And the last is a genetical code is universal. There is a genetical code is a universal and common for almost all organisms on the earth. There is a most important thing here. The genetical code is universal and common for almost all organisms on the earth. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है, जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण। देखिए, जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण क्या होती है? संश्लेषण का मतलब आपको पता ही है। कहते हैं यहाँ पर जो है जीनोटाइप्स का भी अपना महत्व रखता है। जैसे आपको पता है कि हर चीज़ों का अपने जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि ये बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन कहते हैं इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही प्रोसेसिंग लगती है। दोस्तों ये साधारण बेशकली आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है आज के समय डिजिटल की दुनिया है, यहाँ पर तो हर चीज़ जो है 3D में दिखाई जाती है। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होगे कि एक ऐसे टीचर हैं जो कि सिंपली बता रहे हैं, कैसा इंस्टीट्यूट वाले हैं जैसे सिंपली करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सिंपल नहीं है, जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी कहीं ये विस्तृत है। कारण क्या है? अगर आपको मैं समझाता हूं तो आप मेरे शक्ल पे देखोगे। कोई टीचर जो होते हैं अगर आपको स्क्रीन पे समझाते हैं तो आप टीचर की शक्ल देखोगे या लिखी हुई बातें ही देखोगे। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपको किताब को ही रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि शब्द देखिए कहते हैं लाइन टू लाइन पढ़ना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। आप जब ये पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने किताब से रीड कर रहे हो, और ये भी डिजिटल माध्यम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं यहाँ प्रोनाउंसिएशन की कोई बात नहीं रहती, बात होती है सिर्फ आपको समझने का कि इस टॉपिक में क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर सिर्फ ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाने के लिए अग्रसर है जिन बच्चों की ये ज़रूरत है, जिनको चाहिए कि उनको ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे पता है एक बात ज़रूर है कि जब तक आपको सही ज्ञान की मार्गदर्शन नहीं रहेगा, आप एक अच्छा इंसान, आप देश के कल्याण के लिए कभी भी अग्रसर नहीं रह सकते। क्योंकि अधूरा जानकारी लेके आगे बढ़ना ये कदाचित उचित नहीं होता है। आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर ये भी चाहता है कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। लेकिन ये कब संभव होगा, कैसे संभव होगा? आप सोच रहे होगे कि आप वही बात दोहराई जाएगी, लेकिन दोहराने से दोस्तों कुछ नहीं होना है। ये तो मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ कि आपने क्या करना है, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा देना है, ठीक है। आपको इसमें कुछ ही प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी लोग आपको गलत नहीं कह सकता है, क्योंकि जिसको ये वीडियो की ज़रूरत होगा वो एक्सेप्ट करेगा, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं होगा वो रिजेक्ट करेगा। कहते हैं कि जो प्यासा होता है उसको पानी के लिए वो तरसता ही है, अगर वो आपकी तरफ से मिल जाए तो उसके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा। तो इसमें आपको सोचना नहीं। देखिए, अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो तो कोई भी व्यक्ति आपको गलत नहीं कह सकता है, कोई भी बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई की बात है। पढ़ाई लिखाई की माध्यम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए त्रिपाण सेंटर जो है आप लोगों के लिए हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे आपको वो समझाने की बात हो, तो हर कुछ जो है आपके फेवर में
ही कार्य करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आपका भी फर्ज है जितना हो सके दूसरे बच्चों को तक ये पहुंचाने में मेरा हेल्प करो, सहायता करो, ठीक है। तभी जाके जो है त्रिपाण सेंटर और भी आपके लिए अच्छा करेगा। आने वाला समय में फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपको देखने को मिलेगा कि हम उसमें भी बहुत ही अपने ही अंदाज और अपने ही सिलेबस के रिगार्डिंग चलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, आपने क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना नहीं भूलना है। अगर ये भूल गए तो समझिए त्रिपाण सेंटर को आप भूल चुके हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो अगर आप सब्जेक्ट भी आप रिसर्च करोगे, चैनल भी रिसर्च करोगे, तो मुझे पता है कि मेरा जो चैनल है बहुत इतना विस्तृत नहीं है, ना डिजिटलाइज है, तो ये आपको रिसर्च में जल्दी आएगा नहीं। आप रिसर्च करोगे तो पहले जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका ही आपको प्राप्त होगा। तो आप मेरे वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे, समझ से भी अनभिज्ञ रह जाओगे। चलिए, ये तो आपकी मर्जी है, जहाँ देखिए जहाँ समझ में आए। मेरा तो विचार यही है कि जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन अच्छा हो, कंप्लीट हो और समझ वाली हो। चाहे मेरे वीडियो हो, चाहे किसी का भी हो, मैं किसी चीज़ से कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, ना किसी से मुझे ईर्ष्या है, सिर्फ आपको मुझे समझाना है, ठीक है। चलिए, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारा जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण में जो है केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा है और कौन से पार्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये बात बताया गया कि जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण आखिर होती क्या है, आखिर किस बात के लिए आधारित होती है। कहते हैं एक विशिष्ट के जीन जीनोटाइप्स कहलाते हैं, यानी एक विशिष्ट को ही हम जीनोटाइप्स कहते हैं, और जीन की अभिव्यक्ति यानी फिनोटाइप्स कहलाती है। जीन की अगर अभिव्यक्तित्व होती है तो उसको हम फिनोटाइप्स कहते हैं। इसके बारे में आपने 21वां चैप्टर अगर नहीं देखा है तो देख लेना, पीछे वाले वीडियो है, उसमें आपको जरूर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जीनोटाइप और फिनोटाइप्स के बारे में मिल जाएगा। और नेक्स्ट रचना प्रोटीन होते हैं जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्रकृति जैसे पेप्सिन, जो लगभग सभी प्रोटीन होते हैं, यानी इसमें सारे तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कहते हैं कोशिका झिल्ली में वाहक प्रोटीन यानी कैरियर प्रोटीन भी होते हैं, जिनके बारे में आपने पार्ट 1 में दिया था। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए हमेशा कहता हूं ना कि पीछे वाला चीज़ जरूर देखो, क्योंकि सारी बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो आप पिछला नहीं देख पाते हो तो आगे को समझना आपके लिए थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है। तो आप कहते हो कि भाई कैसे समझने में आ ही नहीं रहा। तो अब देखिए, हर एक पिछला टॉपिक को मैं अगर दोहराता रहूँ तो शायद जो है वीडियो बनाने कितने नंबरों में चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये बातें आपके लिए भी जरूरी है कि पिछला वीडियो को आप देखते रहें, तभी आपको आगे की बातें समझ में आता रहेगा। तभी तो मैं एक सीक्वेंस 22 करवा रहा हूँ और कोई विषय को मैं सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के लेके ही चल रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। जब केमिस्ट्री हुआ तो केमिस्ट्री के लेके चलूँगा, और फिजिक्स होगा तो फिजिक्स लेके चलूँगा, क्योंकि एक सीक्वेंस 22 चलने में क्या होता है, बच्चे देखते जाते हैं, उनको नॉलेज प्राप्त होता जाता है। तो यही बात है। कहते हैं अंततः बहुत प्रकार के प्रोटीन होते हैं और इसके निर्माण की जो है सूचना जीनों में विद्यमान रहती है, यानी इसके निर्माण कैसे होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपको दोस्तों उसके जीनों में ही विद्यमान होती है। जो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोमोसोम में उपस्थित डीएनए अणु के अनुक्रम होते हैं। कहते हैं अगर प्रोटीन संश्लेषण के अध्ययन के लिए पहले आपको कुछ बातें को समझना पड़ेगा, तो वो बातें हैं 2 प्रकार की। एक होगा आपके केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा, एक होगा जीनी कोड। जीन कोड होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। कहते हैं जीन न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटीनों के संश्लेषण करते हैं। कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में जीन से प्रोटीन संश्लेषण स्थल को सूचना को स्थानांतरित केंद्रीय सिद्धांत निर्माण भी करता है, जो निम्न अनुक्रम में संपन्न भी होता है। सूचना डीएनए विशेष जीन में से आरएनए के जरिए विशेष प्रोटीन का संचारित भी होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आप देखना चाहोगे तो इसमें क्लियर इस बात को रिप्रेजेंट किया गया है कि डीएनए प्रकृति दिखाया गया है, ट्रांसक्रिप्शन दिखाया गया जो कि आरएनए के साथ जाता है, और ट्रांसलेशन जाके जो है प्रोटीन के साथ संतुलित करता है। तो इस प्रकार जो है आप इसको समझ सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है। कहते हैं अगर देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए में जो है कोडिकृत या कोडलित यानी कोडिड सूचनाओं को एक पूरक संदेश वाहक आरएनए अणु की भांति प्रतिकृत करती है, यानी ये जो है सूचनाओं को भेजती है। और यहाँ पर इसे ट्रांसक्रिप्शन भी कहती है, यानी ट्रांसक्रिप्ट करके इसको भेजा जाता है। संदेश वाहक यानी मैसेंजर आरएनए जिसमें जो है सूचना निहित होती है। आपको याद रखना चाहिए कि जो आरएनए होता है वो एमआरएनए के रूप में जो है मैसेंजर संदेश वाहक होती है। न्यूक्लियस से बाहर आकर कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है राइबोसोम से जुड़कर सूचनाओं को एक प्रोटीन के रूप में संश्लेषित करता है, और इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आगे देखेंगे
तो इस प्रकार जो है हमें किसी बात की सूचनाएं हमारे माइंड तक पहुंच जाती है। कहते हैं रोटावायरस में जो है आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर आप रोटावायरस के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है और इसलिए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस प्रक्रिया की उपस्थिति में सर्वप्रथम एक डीएनए अणु के स्थानांतरित भी होता है। तब पश्चात केंद्रीय सिद्धांत पथ का अनुसरण किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट में भी दिखेगा। यहाँ आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रोटावायरस का अनुवांशिक पदार्थ जो कि डीएनए के साथ जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए, और लास्ट में प्रोटीन के साथ अटैच करेगा। तो ये डायग्राम भी बहुत कुछ बता देती है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जीन कोड। देखिए जीन कोड भी अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं प्रोटीनों के संश्लेषण की सूचना डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के एक अनुक्रम में विद्यमान होती है और यह जो है कोडीकृत सूचना या रिवेंस जो है निग्रोवर्क्स या मैथलोओकास द्वारा प्रकट की गई थी। यानी दोनों साइंटिस्टों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया था, जिसे जीन कोड कहते हैं। जीन कोड का तात्पर्य है एक संश्लेषित किए जाने वाले विशेष प्रोटीन संरचना के लिए एक डीएनए अणु में विद्यमान सूचना से है। यानी जो डीएनए में एक इन्फॉर्मेशन रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कोड कहते हैं। वह जीन या डीएनए का खंड जिसमें एक पूरे जो है पेप्टोपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है गैरकृत सूचना उपलब्ध हो उसे सिस्टोन कहते हैं। यानी सिस्टोन के द्वारा ही सूचनाएं जो होती है उपलब्ध किया जाता है, जिसे हम जीन कोड के नाम से भी जान सकते हैं। इसके आगे हमारा जीन के लिए निम्न अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए जीन कोड के क्या अभिलक्षण होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जीन कोड एक त्रिक या ट्रिपलेट कोड है। इसका अर्थ यह है कि जीन में 3 बेसिस के अनुक्रम जिसे हम कोडन कहा जाता है में एक विशेष अमीनो अम्ल की सूचना पाई जाती है। कोडन एक प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अनुक्रम का भी निर्धारण करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जीन कोड जो है अनुवांशिक कोड यानी सशक्त होते हैं, अर्थात एक विशेष कोडन केवल एक विशेष अम्ल को ही कोडित कर सकता है। ये सारे जीन कोड के अभिलक्षण हम बता रहे हैं आपको। कहते हैं अनुवांशिक कोड जो है कॉमनलेसलेस और नॉन ओवरलैपिंग अर्थात अल्प विराम रहित और अपरंपर अव्यक्त रहता होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे शुरू से ही अंत तक लगातार पढ़ा जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। कहते हैं अगर देखा जाए अनुवांशिक कोड हस्तशित यानी डिग्रेडेड होता है, यानी काफ़ी नुकसान होती है, इसको डिग्रेडेड होती है, तो जीवों के विभिन्न प्रोटीन का निर्माण केवल 20 अमीनो अम्ल से ही होता है। लेकिन यदि 4 न्यूक्लियोटाइड्स में उपस्थित 4 बेसों में से 3 यदि चारों बेसों में एक बेस कोडन बनाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, 4 की पावर जो है 3 कहते हैं। यानी इसको घन के रूप में लिया जाता है, 4 को घन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसको कैलकुलेशन करके 64 कोडन हो सकते हैं। अंततः 1 से अधिक कोडन का एक विशेष अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। वास्तव में आप चित्र में भी देख सकते थे कि एक ही अमीनो अम्ल के लिए कोडन के पहले 2 बेस जो है अवशिष्ट होते हैं और तीसरा बदलाव रहता है। इसे हम जो है बेवल्स परिकल्पना भी कहते हैं। यानी बेवल्स परिकल्पना अगर आ जाता है एग्जाम में तो याद रखना कि यही बात बताया गया, जिसमें पहले 2 बेस उपनिष्ठ होते हैं और इसके लिए कोडन में पता है, यानी तीसरा जो है बदलता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। आगे देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो है अनुवांशिक कोड mRNA को पढ़ा जा सकता है, यानी मैसेंजर को आप इसको पढ़ा जा सकता है। उसके पश्चात अगर AUG कोडन देखें हम तो मेथ्योनाइन्स जो थे अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है और यह प्रारंभ कोडन यानी इंट्रोडक्शन कोडन कहलाता है, क्योंकि यह एक सिस्टोन से अनुलिखित यानी अनट्रांसक्रिप्टेड किया जाने वाला पहला कोडन कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, सिस्टोन में जो होता है अनुलिखित होती है, यानी इसको AUG में कोडन जो है नहीं किया जा सकता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। उसके पश्चात है UAA या UAG या UGA। देखिए ये सारे कोडन है, ठीक है। रोड कोडन कहते हैं इसको, स्टॉप कोडन कहते हैं। ये तीनों जो होता है स्टॉप कोडन होता है, यानी UAA, UAG, UGA। और ये तीनों जो कोडनों में से एक प्रत्येक स्टोन के सिरे पर प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करने के लिए विद्यमान रहता है। यानी यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण जो होती है खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। कहते हैं अनुवांशिक कोड सार्वत्रिक होती है, यूनिवर्सल होता है। अनुवांशिक कोडन जो दोस्तों होता है यूनिवर्सल होता है और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए सामान्य होता है। यानी प्रत्येक जीव के लिए जो है आपको पता है अनुवांशिक कोड जो होती है एक यूनिवर्सल होती है और ये प्रत्येक जीव के लिए इंपॉर्टेंट होती है।